correlation between the gold price and US economy. So if they want to get some of the amount from gold, then definitely they have to issue the bad results for their own economy, and it also directly affects their stock market also. In gold, definitely they will get the benefits, but again their stock exchange, that ruins. In 2008, we see that the worldwide recession was there, and it charts from the USA. So it is bad for their own stock exchange. If they saw the negative result for their own economy, and definitely it has the negative impact on their own stock exchange. So it never happens that they saw the negative results of their economy and getting the benefits from gold. They may show the positive results when they want to buy. What? They may show the more positive results when they want to buy from somebody. If they show the positive results, then definitely they have to show that whatever the positive balance or whatever the positive thing that they have got, so what they have done with that. If our country shows that the positive trade balance, then again our government has to show that at where and when they are using such a positive trade balance. So if they don't have, then what they see to their public that this positive balance will be used over this or this. Definitely they will have to show whatever the positive thing, then they have to show that where and when they are using it. So if they don't have, then how they need use? So they never see the negative as well as the positive fact result for getting the benefits from gold. Thank you, sir. Very nice. It shows you have got a lot of in-depth knowledge about it, but now operating from a layman's point of view. So who can deal with this? Let's say I don't have any knowledge and I want to become rich, as you suggested. Let's say. So do we need any qualification? Do we need to invest something? Do we need a setup? That's one. And just taking a cue from what sir was saying, has there been any incident where cybercrime or some kind of cheating has been done with the software, with the website, or any kind of scandal related to this? Yeah. If it has. Okay, according to my knowledge, this not happen, cybercrime or anything. And if, like a layman, if you want to deal in a commodity, then nothing, just you have to observe up to 2 to 3 months. What's the market every day? Then start to show the data of US. Just note the data of US and instantly observe the market. That what is the effect of this data in market, If the trade balance is positive, then what is there in the actual commodity? If the unemployment is increased, then the forecasting. And what is the result on, if you observe for 5 to 6 months, then definitely you will get the idea that if the data is this, then what is my trade in a commodity? Whether I have to buy or whether I have to sell. So within the practice of 5 to 6 months, we can deal and if you do the trade according to this, then it is the other thing that you might earn, you might not earn. But that is for sure, you may not lose your money. Because once the economic result is positive, then gold the price is never rise for that day only. For that day, the price of gold never rise. It falls, falls and falls. Either it falls or it may stable, but it cannot rise. That's the thing. Do we need to register somewhere? Yeah, have you ever heard of the Demat account? Yeah. Also for the same, you have to open account with Ajay Natolal, Marwadi. They offer us same procedure, and another that is Dabba trading that you know. That is also happen in the market more than the legal. So for that you don't have to register. You have to just open your limit. Either you have to put the deposit over there, 2 lakh, 1 lakh, 5 lakh, and start the trading. Thank you, Mayur sir. Was it interesting? Informative? Okay. Are you all right now? Very much that we got it. Right now we are going to go for the breakfast time, which would be for 15 minutes. There is one announcement for teachers. Please go out during the presentations. It will really distract the presenter. Please follow this. Thank you.
Within 15 minutes, please come back, and the breakfast has been arranged for us in the dining area. So get back within 15 minutes. We'll be sharp starting our presentation. This is again my request to all the participants, please stick to your time as we are getting late, and to audience also, please ask 1 or 2 questions and don't convert this presentation in a debate form. Please don't make it otherwise. Now one question to audience, that जब वो बीमार पड़ते हैं तो हम किसके पास जाते हैं? Don't take it otherwise. आपने रगड़ा पाव खाया इसलिए मैं नहीं पूछ रही हूँ। डॉक्टर के पास, हॉस्पिटल जाते हैं, right? But what about an ancient time? जब हॉस्पिटल अवेलेबल नहीं थे, ज़्यादा जो ट्रीटमेंट लोग घर पे ही करते थे। So to know about that, I'd like to call Vinisha ma'am on the stage. Her topic is प्राचीन युग आयुर्वेद का महत्व। क्षमा कर दीजिए, मेरा सब्जेक्ट तो हिंदी है, मैं तो हिंदी सब्जेक्ट लेती हूँ, हिंदी पढ़ाती हूँ, मेरा प्रस्तुतिकरण भी हिंदी है, तो मैं इंग्लिश में क्यों आंसर दे रही हूँ, इंग्लिश में क्यों बता रही हूँ, सॉरी प्लीज माफ कर दीजिए। मेरा नाम है मनीषा चुड़ाशमा, मैं 3rd 4th स्टैंडर्ड के बच्चों को हिंदी पढ़ाती हूँ, और आज मेरा सब्जेक्ट मतलब मेरा विषय है प्राचीन काल में आयुर्वेदिक का महत्व। पहले मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी, एक प्रश्न का उत्तर देना है परवेश सर मुझे, आपको, ठीक है? सर, आपके पास मैंने 2 साबुन रखे हैं, ठीक है? उसमें नाम नहीं है, और इस दोनों का कलर बताना है। आप कलर मैं आपको बता रही हूँ, आपको चूज करना है, ठीक है? एक है व्हाइट सफेद कलर, एक है ग्रीन यानी हरा कलर, 2 कलर के साबुन रखे हैं। आप कौन सा सोप यूज करोगे, चूज करोगे, कौन सा साबुन चूज करोगे? It depends on purpose for what I'm using. Okay, but I think I would go with green. I would go with green. ऑडियंस को बताऊंगी मैं कि हम जब बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं कि हम उससे पहले बता दें कि आपको कहाँ पढ़ना है, क्लासरूम में पढ़ना है कि बाहर जाके। मोस्ट ऑफली स्टूडेंट क्या आंसर देते हैं, बाहर जाके। क्यों? बोर हो जाते हैं। क्योंकि वहाँ पे उसको नेचुरली वातावरण में पढ़ना अच्छा लगता है, ठीक है? तो ऐसा मेरा टॉपिक है आयुर्वेद, आयुर्वेद का प्राचीन काल का आयुर्वेद। एक और एक्टिविटी करवानी है मुझे आपसे, रिक्वेस्ट करती हूँ सभी को मैं, प्लीज 2 मिनट्स क्लोज योर आइज। आप अपनी आंख बंद करेंगे प्लीज, मेहरबानी करके, थैंक यू। देखो आपको ये महसूस करना है, आइज ओपन नहीं रखना है मैडम, हमें नेचर की ओर प्रयाण करना है, नेचर में जाना है। अभी आप सोचो प्राचीन युग में जा रहे हो, ठीक है? प्राचीन युग में हमें सबको जाना है। देखो आप जहाँ पर अभी बैठे हैं, चारों ओर हरियाली हरियाली है, आपको महसूस करना है कि चारों ओर हरियाली है, अच्छे अच्छे पत्तों की सुगंध आ रही है, अच्छे अच्छे फूलों की सुगंध आ रही है, उसके पास खिलखिलाता हुआ एक छोटा सा झरना बह रहा है। आपको महसूस हो रहा है? महसूस हो रहा है आपको? मुझे तो फूलों की सुगंध आ रही है, आपको आ रही है? मुझे हरे पत्तों, सरसों के पत्तों की सुगंध आ रही है, आपको आ रही है? आ रही है? थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपने बात सुनी होगी कि आपकी ग्रैंडमदर डॉटर को पूछते हैं कि आपकी खूबसूरती का राज क्या है, तो उसका आंसर है प्रकृति का स्पर्श, और क्या है ना? तो प्रकृति के स्पर्श से, अगर प्रकृति का स्पर्श से आयुर्वेद इतना काम करता है, तो सोचो आयुर्वेदिक औषधियां जड़ी बूटियां कितना काम करता होगा। स्वतंत्रता के बाद प्रस्तावना में जाते हैं, इंट्रोडक्शन। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय वैज्ञानिकों ने एक चिकित्सा की ओर, आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति की ओर प्रयाण किया, उसका ध्यान उसकी ओर आकर्षित हुआ। उन्होंने आयुर्वेद चिकित्सा के विकास के लिए 22 मई 1961 में
आयुर्वेदिक चिकित्सा, उसका निर्माण किया जिसका नाम है सेंट्रल प्रोसेस रिसर्च इंडिया एंड होम्योपैथी नाम का एक लोकसभा में एक प्रतिपादित किया उन्होंने। अब उसकी शोध की ओर हम जाए तो आयुर्वेद का शोध कहाँ से हुई? परमपिता ब्रह्मा ने आयुर्वेद की रचना 4 वेदों की रचना की। ब्रह्मा ने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो सबसे पुराना ग्रंथ है वो ऋग्वेद है, जो 3000 से 50,000 साल तक का पुराना ग्रंथ है। उसके इतिहास से हम तो आयुर्वेद, आयु मीन्स मतलब हमारा आयुष्य। वेद जो वेदों से संबंधित है वो वेद आयुर्वेद, आयु से संबंध रखता है वो है आयुर्वेद। वेद यानी वेदों से संबंधित, आयु मतलब हमारे आयुष्य। आयुर्वेद जीवन और मृत्यु की कड़ी को जोड़ता है। पहले के जमाने में अस्पताल कहीं पे भी नहीं थे, डॉक्टर्स नहीं थे, अस्पताल नहीं थे, तो क्या उपचार होता था? रोगी का निदान कैसे होता था? उसका उपचार कैसे करते? तो आयुर्वेदिक पद्धतियों से। उसमें से जो आयुर्वेद है वो अथर्ववेद का एक उपवेद है। उसके इतिहास में जाएंगे हम। जो परमपिता ब्रह्मा ने 4 वेदों की रचना की, उसमें से अथर्ववेद का उपवेद आयुर्वेद को बताया गया। सबसे पहले ब्रह्मा ने एक धन्वंतरी भगवान जो आयुर्वेद के देव कहे जाते हैं, धन्वंतरी भगवान को उन्होंने आयुर्वेद का उपदेश दिया, आयुर्वेद का पूरा ज्ञान दिया। उस ऋषि भार्गव ऋषि का नाम सबने सुना होगा, भार्गव ऋषि। तो भार्गव ऋषि ने भगवान धन्वंतरी से ज्ञान प्राप्त किया आयुर्वेद के बारे में कि अपने शिष्यों को सभी अच्छा जीवन प्रदान कर सके। कोई रोग हो तो उसकी औषधियों से उसका अच्छा सा इलाज कर सके। तो उन्होंने अपने 6 शिष्यों को उसका ज्ञान दिया। उसमें से एक बुद्धिशाली शिष्य था उसका, जिसका नाम अग्निवेश था। अग्निवेश ने एक संहिता का निर्माण किया। अग्निवेश के बाद जो चरक नाम के ऋषि आए, उन्होंने चरक ने उसको प्रतिपादित किया, जिसके जो चरक संहिता के नाम से विख्यात है। उससे आगे हम देखें तो धन्वंतरी भगवान जिसको परमपिता ब्रह्मा ने धन्वंतरी को आयुर्वेद का भगवान कहा गया। तो धन्वंतरी कौन है, कहाँ से आए हैं? उसके लिए दंत कथाएं हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि पहला तो है कि धन्वंतरी, एक दंत कथा ऐसी है कि काशी के राजा के यहाँ धन्वंतरी का जन्म हुआ था। वहाँ पर महर्षियों धन्वंतरी के यहाँ आयुर्वेद के लिए ज्ञान प्राप्त करने जाते थे। तो उन्होंने आयुर्वेद के बारे में बताते हुए कहा कि मुझे ये ज्ञान परमपिता ब्रह्मा से मिला है। लेकिन उससे पहले परमपिता ब्रह्मा ने इंद्र भगवान को, इंद्र से अश्विनी कुमारों को और उसके बाद अलग अलग ऋषियों को उसका ज्ञान प्राप्त हुआ। लेकिन धन्वंतरी को इसीलिए इसका प्रतिपादित किया गया है आयुर्वेद का देव। उसके लिए दूसरी दंत कथा है कि जब समुद्र मंथन हुआ था, हम सब जानते हैं समुद्र मंथन कब हुआ था, तो सैकड़ों साल पहले पृथ्वी की उत्पत्ति के साथ आयुर्वेद जैसे संबंधित है। वैसे जब समुद्र मंथन हुआ वो दुधिया सागर में हुआ था। तो समुद्र मंथन में बहुत सारी चीजें निकली थी, हम सब जानते हैं। उसके साथ धन्वंतरी भगवान प्रतीत हुए, वहाँ उपस्थित हुए। तो धन्वंतरी भगवान ने वो अमृत लेकर तो आए थे, उसके साथ कुछ और भी था, वो था आयुर्वेद का ज्ञान। आयुर्वेद का एक कोड लेकर आए थे। उन्होंने अमृत को वितरण कर दिया, लेकिन आयुर्वेद वो लेकर सीधा परमपिता ब्रह्मा के पास गए। तो वो था त्रयोदशी, कार्तिक त्रयोदशी। वो दिन था कार्तिक त्रयोदशी, जो धनतेरस थी। 13 थी कार्तिक त्रयोदशी, 13 थी। तो उस दिन को धनतेरस हम कहते हैं। जो दिवाली के, अभी हमने दिवाली की छुट्टियां मनाई, इससे पहले वो धनतेरस आती है। तो हम कहते हैं धनतेरस मतलब लक्ष्मी की पूजा। धनतेरस को दिन लक्ष्मी की
करते हैं, क्योंकि वो धन देती है, धनतेरस ऐसा नाम है तो धन देते हैं, लक्ष्मी माता की पूजा है, तो सब धनतेरस तो लक्ष्मी की पूजा करती है। रियल में ये है कि धनतेरस धन्वंतरी भगवान की तेरस है। उस दिन धन्वंतरी भगवान अवतरित हुए हैं। शास्त्रों में कहा गया है, बाकी जो भी कोई जो माने कि तेरस के दिन धन्वंतरी भगवान प्रतीक हुए थे, तो उस दिन को धनतेरस माना जाता है। तो वो एक ग्रंथ कथा है। प्राचीन काल से लेकर आज आधुनिक काल की बात करें हम, तो आयुर्वेद का इतना महत्व बढ़ गया है। आप कहीं भी जाओ, अच्छी ट्रीटमेंट के लिए आयुर्वेद संबंधी हमें चिकित्सात्मक जो भी है आयुर्वेद संबंधी ट्रीटमेंट बताएंगे हम कि ये आप उपचार अच्छा है, आयुर्वेद का ये उपचार अच्छा है, ये उपचार अच्छा है। आयुर्वेद आप देखो तो हमारे घर के आसपास जो छोटे मोटे पौधे हैं, तो वो पौधे हमें पता नहीं है कि ये क्या उपयोग में आता है, पर कोई ना कोई पौधा हमें औषधि के लिए अवश्य काम आता है। हम पहचानते नहीं, हम जानते नहीं है, इसीलिए उसको उठा के फेंक देते हैं। आप साधु महात्मा को देखो तो वो बिना खाए पिए सैकड़ों साल रहते हैं, तो वो जड़ी बूटियों का उपयोग करते थे, इसी जड़ी बूटियों सेवन करते थे, जिसकी वजह से वो सैकड़ों साल तक जिंदा रहते हैं। और ऐसे समाधि में बैठे रहते थे, एक जड़ी बूटी उसको सैकड़ों साल तक जिंदा रखती थी। आजकल देखो जूनागढ़ में जो साधु महात्मा है, साधु है जूनागढ़ के, तो वो भी ऐसे जड़ी बूटियों का सेवन, हम बोलते हैं शिवरात्रि के दिन बाहर आते हैं, तो वो भी ऐसी जड़ी बूटियों का सेवन करते हैं। आज आधुनिक युग में भी आयुर्वेद का इतना महत्व है कि हर शहर में, छोटे बड़े शहरों में आयुर्वेद चिकित्सा की स्थापना की गई। आयुर्वेद हॉस्पिटल हर जगह पे है। यहाँ से बात करें हमारे बहुत ही जूनागढ़, तो जूनागढ़ में आयुर्वेदिक कॉलेज है, जिसको आयुर्वेद छात्रों को आयुर्वेद का ज्ञान दिया जाता है। थोड़ा सा आगे जाए तो जामनगर में एशिया की सबसे बड़ी कॉलेज है आयुर्वेदिक, सबसे बड़ी कॉलेज है जामनगर में आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल। तो हमारे गुजरात से बाहर पूरे इंडिया में ऐसी कई जगह आयुर्वेदिक कॉलेज है जहाँ पे आयुर्वेदिक का उपचार होता है। तो आजकल के जनरेशन में लंबी बीमारियों तक ये कोई उपचार नहीं मिलता है। कैंसर का डॉक्टर कैंसर के पास जो भी इलाज के लिए जाते हैं, जो दर्दी कैंसर का है वो डॉक्टर के पास जाते हैं कि चलो आप इसको घर में लेके जाओ, इसका इलाज नहीं होगा, इसका टाइम आ गया है, अब घर में तो उपचार करो, ऐसा बोलते हैं। तो साउथ दिल्ली में एक हॉस्पिटल है, साउथ दिल्ली में एक हॉस्पिटल है, वहाँ पर कैंसर जैसी लंबी बीमारी का इलाज होता है जो ज्वारा के मुताबिक होता है। ज्वारा मीन्स जो ज्वारा, बस सब जानते हैं ज्वारा जिसको बुलाते हैं। वहाँ पर एक ट्रीटमेंट करवाते हैं 8 पोट से, उन्हें छोटे उसमें वो 8 पोट डाल के एक वीक के लिए उसका उपचार करते हैं। और एक दिन एक वीक का जो ज्वार है वो उठा के उसका रस निकाल के उस दर्दी को पिलाया जाता है। ऐसा 2 मंथ तक करते हैं कंटिन्यू। जब वो पोट फिनिश हो जाए तो उसका सर्कल वापस चालू हो जाता है। तो इस तरीके से वो कैंसर की बीमारी को मिटाता है। अब दूसरी एक बीमारी है वाई, जिसका कोई इलाज नहीं, डॉक्टर बताते हैं कि इसका कोई इलाज नहीं है। वाई सब जानते हैं ना, वाई से लेते हैं जिसमें बेहोश हो जाते हैं। तो उस वाई के लिए हमारे हरिद्वार में उपचार करते हैं। लहसुन जिसको बोलते हैं, लहसुन बोलते हैं, लहसुन बोलते हैं, रेगुलर हमारी लाइफ में यूज करते हैं। तो उसको पीस के, लहसुन को पीस के उसके रस उस दर्दी के नोज में डालते हैं, वो इमीडिएटली बेहोश होने वाला इंसान इमीडिएटली खड़ा हो जाता है। रेगुलर इसको लहसुन की कली को अगर उसको रेगुलरली 2 मंथ तक उसको सेवन करते हैं गर्म पानी के साथ, तो उसको वायरस की बीमारी खत्म हो जाती है। तो आयुर्वेद ऐसी चीज है जो हमें लॉन्ग टाइम पे भी असर करती है, पर बहुत अच्छा असर करती है। उसका आयुर्वेदिक में कुछ इफेक्ट नहीं करती, उसका गलत नहीं, वो लाभदायी होती है। कुछ भी चीजें आप यूज करो वो हमेशा लाभदायी होती है। ऐसे आयुर्वेदिक के लिए जितना कहा जाए उतना कम है ना। मैं अपने शब्दों को विराम दूंगी यहाँ पे। थैंक यू। Good it is good okay also for having. Now nowadays this is I think more needed. But you know what you think about right now? Today present more Ayurvedic or other things required? What is your opinion?
my question is that mainly हाँ ओके हमारा प्रश्न है कि आपको ये आयुर्वेदिक है और सामने एलोपैथी है अभी भी हम देख रहे हैं हमारे सोसाइटी में मोस्टली तो एलोपैथी आई थिंक more than 90% पेशेंट भी अभी तो एलोपैथिक में ही जाते हैं तो आयुर्वेदिक तो अभी हम जानते हैं तो आप क्या सोचते हैं अभी भी इस टाइम पे अभी क्या अच्छा है सर आयुर्वेदिक अच्छा है। कल मैंने इस क्वेश्चन का आंसर दिया था कि अगर मेरा बेटा 9 मंथ का था तो उसको इतना फीवर आया था कि उसको आंची आने लगी तो उससे वो आंची दिमाग से जुड़ी है तो उसके लिए मैं आयुर्वेदिक ढूंढने नहीं जाती तब तक वो सब फिनिश हो जाए उसके लिए डॉक्टर के पास ही मुझे लेकर जाना पड़ता है तो इमीडिएटली इलाज के लिए वो जरूरी है। Okay, so you are immediately, मतलब आपकी कैसी सजा भी है जैसे आपने बोला कैंसर डायबिटीज है even sometimes in heart attack also the precautions are taken before वो उसके साइंस सिम्टम्स मिलने के बाद तो उसमें भी वो क्या होता है कि हम इतना सुनते हैं आयुर्वेद के बारे में और उसके इंक्लूड नहीं कर रहे मतलब आपने तो अभी अपनी प्रेजेंटेशन दिया जैसे पेपर में आता है न्यूज़ में आता है हम पुराना है इतना सब जानते हैं इवन मैं नहीं बोल रहा हूँ इसे एज ए प्रिकॉशन ओके एलोपैथी तो हो गया तो आप एलोपैथी जाना ही पड़ेगा ओके वी विल स्टॉप बट इतना हम जानते हैं